ڈسٹرب ہو گئی تو میں معذرت خواہ ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ تو ایک صلح جو پسند انسان ہیں اور صلح کرانے میں آپ بڑا علی احمد صاحب جا کے تسی وہ فرقے خنزیرے اگے کیوں نہیں جا کے بول دے اس طرح خان صاحب جڑا وہ سارے فساد دی جڑ ہے جنہیں ٹک ٹوک دے آپ ہمارا ساتھ دیا کریں, آپ ہمارے بہت قریبی دوست ہیں. رانا صاحب ایک منٹ, علی احمد صاحب ایتھے آن کے نصیحتاں کرن دے, جاؤ اوتھے جا کے جنہیں امے رباب دے کپڑے لوائے سن اوتھے تہاڈی نصیحت کتھے مر جاندی ہے کسی دے کپڑے نہیں دھوائے, نہیں کسی دے کپڑے وہ کہندا کہ حضرت علی دی سنت ہے عورتاں دے کپڑے لوانا, اوتھے تہاڈی غیرت کتھے مر گئی سی؟ وہ جتھے انہوں نے تے وہ بیان کیتا سکا کہ تلاشی لین واسطے جس لئے جامعہ تلاشی لی جاتی ہے. حدیثاں تے جھوٹ بولدے نے لوگ. کیا خیال ہے رانا صاحب؟ یہ جو محمد خان صاحب ہے نا, محمد خان صاحب, یہ نہیں ہے ان کی, یہ تو ہماری بات کر. نہیں محمد خان صاحب نہیں, علی احمد صاحب. میں نے کسی کی وکالت کی, توضیح پیش کر رہے ہیں, اور نہیں انہوں نے کہا ہے تلاشی, اور یار اس نے صاف کہا ہے یہ ساری باتیں. عورتوں کے کپڑے اتارنا علی حضرت میں نے تو یہ کہا ہے کہ جو میں نے سنا ہے وہ اس میں انہوں نے حضرت علی کی روایت بیان کی ہے. ہاں آپ کے کان میں اس نے بتایا ہوگا, یہ جو 20 لوگ بیٹھے ہیں ان کو نہیں پتا کیا کہا. نہیں, اگر میری بات غلط ہے تو وہ آڈیو پلے کر دیں. علی احمد صاحب خدا نو جان دینی جی کہ نہیں, خدا نو جان دینی جی کہ نہیں, خدا نو ہی دینی ہے جناب. جھوٹ بول دو اینا بھی جماعت احمدیہ دی بغض چ میں تے کہہ رہے ہیں کہ جیڑی گل میں شرم ہوئے نا یار تو ہیں اٹھا کہ بے شرم ہوئے نا یار تو, تیرے چ شرم نہ دی کوئی چیز ہے کہ نہیں مجھے بتا چل. اچھے الفاظ میں بات کریں. میں رانا صاحب بے شرم علی کوئی گل ہے کوئی غلط؟ رانا صاحب میں تو آپ سے مخاطب تھا, یہ پتہ نہیں کیوں مجھ سے مخاطب ہو گئے. میں نے تو ان سے بات کی, لیکن آپ برے کو برا تو کہیں نا. السلام علیکم. میں نے تو یہ کہا ہے کہ آپ ایک پڑھے لکھے, دیکھیں میں ایک بات سنیں, میں علی احمد صاحب میرے سامنے, میں کوئی جج تو نہیں ہوں, میں تو یہ کہہ رہا ہوں, میں یہ تو نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں بس آپ انصاف کی بات کر دیں, بس یہی چاہتے ہیں. چلیں کیا کروں میں انصاف کی بات, برے کو برا کہہ دیں کہ یہ جو برا میرے سامنے دونوں لوگوں کے بیانات موجود ہیں, اصل واقعہ موجود ہے, کچھ بھی نہیں. یہاں تو ایک بات ہو رہی ہے جو کہ جتنی بات میں نے سنی ہے اس کے مطابق میں نے آپ سے بات کی. اگر میری بات غلط ہے تصحیح کر دیں, بس اتنی سی بات. لیکن آپ نے وہ آڈیو مجھے بطور جج تو نہیں یہ جو ڈنڈا چڑھ آنے والی آڈیو میں عرض کر رہا ہوں کہ جب یہ مکالمہ ہو رہا تھا اس وقت میں سن رہا تھا, اور جو بات انہوں نے بیان کی تھی علامہ صاحب نے, وہ حضرت علی کا کوئی قول تھا یا کوئی روایت تھی یا کوئی واقعہ تھا جو انہوں نے بیان کیا. یہ میں نے سنا تھا, بس اتنی بات ہے. اگر اس کے بعد جو صاحبہ کو ڈنڈا دے رہے تھے اس کا کیا, وہ آپ کے سامنے نہیں ہوا؟ کر لینے دیں بھائی, میرے پاس نہیں ہے نا اس کے کوئی دلائل نہیں ہیں, میرے پاس ایسے کوئی شواہد نہیں ہیں جس کے اوپر, اور نہ میں بطور افضل برائے صاحب ایک منٹ, علی صاحب ایک منٹ میوٹ کرو. علی افضل برائے صاحب تسی وہ سنی ہے آڈیو جہدے وچ لو پیچھے چلے گئے نے, کوئی بندہ ہے یار تھلو کو کال پاوے کسی بندے نے اتنے لو جہدے کو آڈیو ہوگی ہے, میرے کو مینوں واپس جانا میں لیکن یار مجھے سمجھاتے ہیں یہ فلاں فلاں, وہ مجھے سب کا پتہ ہے یار, اب کیوں ایسا ہے؟ افضل فریج بھائی تسی تو یہی تو بات کر رہا ہوں رانا صاحب, آپ کو وہ تمام معاملات کا پتہ ہے تو آپ ان کو افہام تفہیم سے ان کے درمیان لڑائیاں اچھی نہیں ہوتی. میں نے تو یہ کہا ہے کہ دیکھیں کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے, ان کو ڈر ہے کہ یہ افضل فریج رانا صاحب بہت زیادہ مائک کھلے ہیں,
राणा साहब, कुछ लोगों को यार ये मैं डर क्या करूं, बात ही नहीं करने दे रहे। राणा साहब बहुत ज्यादा तो माइक खुले इनको हुए हैं, इस आवाज। जी ठीक है, म्यूट करें सब लोग। मैं अली अहमद साहब से बात कर लेता हूँ, हमें 5 मिनट दे दें। अली अहमद भाई, बात ये है, अफाम व तफहीम ही हम करवाना चाह रहे थे, यही हमारा काम है। लेकिन एक बात सोचें, अफाम तो क्या हमारा, मेरा मकसद अवेयरनेस पैदा करना है, बाकी अफजल बड़ाई साहब जाने और वो जाने। लेकिन क्या वो बंदा माफ़ी मांगता है इस बात पे आके, सॉरी करता है, रुजू करता है? बताएं। देखें, इन दोनों को बुलाएं और दोनों के दरमियान दोनों ग्रुप्स जो हैं, कोई एक बंदा तो इसमें नहीं है। अली अहमद साहब, यहाँ अल्लामा साहब तो क्राइम किसी हो को रहा है, बुरा भला नहीं क्राइम है, कहते। वन साइडेड क्राइम है। सुलह तो तब होती है देखें, दोनों की अल्लामा लड़ाई साहब हो। तो बेशतर मौके पे ज्यादातर टाइम उनका गुजरता है, हुसैनी साहब उसने की कहा प्लॉट पे डंडा आते दे हैं दूंगा तुम्हारी और बहन के ज्यादातर टाइम वो पीछे। खामोश ये बैठे रहते कितनी हैं। बुरी बात है अली अहमद साहब, यही सुने, कितनी बुरी बात है ये। क्या? इसको कंडेम करें बहनों को। उसने कहा कि तुम्हारी मैं बहन देखें, के मेरे पीछे सामने डंडा दे जो दूंगा। बातें हैं, जो मैंने रवैया देखा है, अल्लामा साहब जो हैं वो आते हैं, हुसैनी नौजी साहब अहमद की साहब प्लॉट की पे ऑडियो बैठे सुनाए रहते इन्हें, हैं, किसी के पास है तो सुनाए बात प्लीज। सुनते हैं, लोगों को कोशिश करते राशिद हैं भैया कि थल्लो सही चुके राणा जवाब साहब दे को ना सकें। होएगी, मेरे को सुनाओ, डबल मोबाइल होएगा। कोई बंदा ऑडियो सुनाए ना इन्हें। मुझे भी 2 मिनट दे। जी वाटर साहब, क्या वाटर भाई आप आ गए, शुक्र है। मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ लोगों को ये डर है कि अफजल वड़ैच साहब कहीं अहमदी ना हो जाएं, तो इस मसले राणा का साहब, आपका माइक खुला है, आप भी बात कर रहे हैं? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कोई बंदा नहीं, ऑडियो लेकिन सुनाए। आप अली अहमद साहब भी बात कर रहे हैं ना, कर एक तो वक्त रहे में हैं, एक। ठीक है। ये बात खत्म हो गई है। वाटर भाई आप कुछ कहना चाह रहे थे, बात करें। हाँ जी, मैं आपको ये वाली बात कहना चाह रहा हूँ कि बात ये है कि हम उस जनरेशन से ताल्लुक़ रखते हैं जो ना ज़ात और बरादरियों को ना ख़त्म करने के चक्कर में थी और इक्वालिटी चाहती थी माशरे में। लेकिन हमारे बुज़ुर्ग ये वाली बातें समझते थे कि जो ब्लड जो होता है ना, वो थिकर देन वाटर होता है। तो ये मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, आपको मेरी बात अभी भी बुरी लगेगी बहुत सारे लोगों को। ये नीच लोग हैं, ये सारे जितने आप ख़त्म नबूवत के बिल्ले लगा के या मजहबी जमातों के बोर्ड लगा के या फट्टे चुक के ऊपर आने की कोशिश होती है ना, ये सब लोअर कास्ट लोग होते हैं। तो इनका मुकाम नीचे ही होता है। इनकी मियाँ बीवी की भी सारी ज़िंदगी लड़ाइयाँ ही रहती हैं। ये जहाँ पे होते हैं वहाँ पे भी लड़ते रहते हैं, आपस में भी शादियों तक पे इनकी लड़ाइयाँ ही होती हैं। एक घटिया किस्म के लोग हैं, आपने इनको कुर्सियों पे बिठा लिया है। ये ज़मीन पे बैठने वाली कौम है, तो इनको ना बस सलाम दुआ करके अपने से दूर ही रखते होते हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं अली अहमद साहब पे भी एतराज़ ये वाली बात का करूँगा कि इन्होंने एक नई इंसाफ की किस्म निकाली हुई है कि जनाब अली जो कुछ इनके सामने होता है ना, सिर्फ दुनिया में वही होता है, उसके अलावा ना अच्छाई होती है ना बुराई होती है। जो इनकी आंखों के सामने हो जाए, ये उसी पर ही सारे फैसले और जजमेंट्स दे देते हैं कि जनाब अली इलामा साहब थे चुप करके बैठे रहते नहीं। और भाई मेरी बात सुनो, आपके सामने इतने गलीज गंदे गुंडे गंदी बैकग्राउंड वाले लोग हैं, आप लोग सिर्फ अकेले रह गए हो जो उनकी सपोर्ट कर रहे हो। सारी दुनिया को पता है कि वो किस कमाश के लोग हैं। तो भाई अपने आप को पहचानो, इन लोगों से अपने आप को अलहदा करो, लगाने दो इनको ब्रॉडे, बनने दो इनको ख़त्म नबूवत के मुजाहिद, जो मर्जी अच्छे मुसलमान इन्होंने बनना है। हमारा और इनका एक साथ नहीं हम चल सकते। ये लोअर कास्ट है, ये ज़ात ही छोटी है, छोटी ज़ातों के लोग और बड़ी ज़ात के लोग नहीं मिल सकते। तो बुरा लगे आपको अच्छा लगे, जो कुरैशी होएगा वो बद्दू के साथ नहीं मिल सकता। बात ख़त्म हो गई बात। ये ज़ात पात वाटर भाई मैं एक ये नीच लोग हैं, लामे लुमे और बात इसकी कहना टीमें चाह रहा हूँ। अच्छा अली अहमद गंदी भाई, बातें ही करेंगे, एक अली बात आपको भी गंदा वाटर करेंगे। भाई एक बात कहना चाहता हूँ, अगर इजाजत दे एक दें मिनट तो। एक मिनट वाटर भाई राशिद साहब एक मिनट, थल्ले राणा साहब ने को इजाजत है, कॉल एक बात पाई है, तू जरा करना उते चुकना जरा को जिन्होंने चुकने आईडी बताएं, आईडी। राणा साहब है, राणा जी वाटर नाम। भाई केड़े राणा साहब? कोई भी नहीं है राणा को कदे भाई बोल रहे हैं, मैं सुन रहा चलो हूँ। उन्होंने चुक लेना। वाटर भाई मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वो ये है ਉਧਰੋਂ ਟਰਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਈਕ एहतियात नाल दिया जी। मुझे भी कुछ कहना नहीं, है। अपने बंदे देखें, राणा अफजल साहब बड़ैच साहब जो हैं वो एक पढ़े लिखे
ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਬੰਦਾ ਨਾ ਲਓ ਪੁੱਛੇ ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਲਾਗੇ ਅਲਾਮਾ ਪਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਾਣੀ ਆਇਆ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਕੋਲ? ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਖਾਤਬ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੁਣ ਵੀ ਲਓ ਗੱਲ। ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲ ਨਾ ਕੱਢੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵੋਕ ਨਾ करे, यार प्लीज यार अली अहमद, मैं ये वाली वकालतें बंद कर दो। हाँ, ये बंद नहीं, कर उन्होंने दो कहा है कि अगर ना 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 देखें, ना बात ना का मौका तो दिया ये करें, वकालतें बंद कर दें। आप सुन अपने लें, सुन बच्चों लें। को ऐसे लोगों के बच्चों में छोड़ सकते हैं? ये आपका पहला मेरी इम्तिहान है। मेरी आप मेरी अर्ज सुन अल्लामे लें। के मैं तो बच्चे के साथ अपने बच्चे को देखिए, कभी वो तो- खेलने दोगे? इतना मुझे लोअर बताएं। क्लास वो बंदा है, कमी कारी टाइप आदमी है। आप पता नहीं यार कहाँ की फिलोसफियां यार लेके आए मैंने हो। आपकी पहल नहीं की कोई मुझसे नए घर उन्होंने को निकाल लाए हो। मुझसे उन्होंने कोई बात पूछी है, मुझे बात करने का मौका ही नहीं दे रहे। अच्छा मैंने तो आपकी सारी बातें सुनी, आपने कमी कमीन करार दिया है, सब कुछ कहा है। थोड़ा जा आईजी साहब इस वक्त आए हुए हैं, तो बाकी लोग खामोश हो जाएं, वो एक्शन ले लेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। आईजी साहब, ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਬੇਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ? ਜੀ दसो यार, मैं अर्ज कर रहा कि अगर मैं कोई गल कवांगा, किसी ਨੂੰ बुरा भला कहांगा, तो ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਰਿਪਲਾਈ 'ਚ बुरा भला आएगा। अगर ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਬੜਾ ਅਲਲ ਐਲਾਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਟਿਕਟੌਕ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਤੇ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ। अली अहमद साहब ये बताएं, ये जो अल्फाज गए ये सही है, ये गलत है? इसको तो मैं condemn अर्ज कर कर देना। रहा हूँ कि Condemn कर दें, please। इसके पीछे आगे जो सियाको सबाब है, 2 सफ़े आगे 2 सफ़े पीछे भी देख लें, ताकि मैं तो कोई जज नहीं, ਅਲੀ मुनसफ नहीं, ਅਹਿਮਦ मैंने तो ਸਾਹਿਬ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਨੇ। इनको बुरा ना कहिए, आप अली अहमद साहब को बुरा ना ये सुन लें, वाटर साहब, प्लीज। वाटर भाई आप मौजूद हैं? अपना केस जी जी, मैं सुन रहा हूँ अली अहमद वाटर साहब, भाई, लेकिन बात दरअसल ये है अली अहमद आप साहब मुझे कि ये बताएं, आप आप ना मुझे ये बताएं, खोले जाने वाटर भाई दी। मुझे ये बताएं, मैंने आईजी साहब को कोई बात कही है? उन्होंने कहा इनके पीछे जो मिर्चें लग रही हैं, अब बताएं, मैंने आपने इनसे कहा है कि आईजी साहब आ गए हैं, अब वाटर भाई चुप कर जाए तो मुंह दे वरना ना। आईजी साहब एक्शन ले लेंगे। नहीं वाटर भाई, अब आपके अब खिलाफ मुझे ही बताएं, होंगे। मैंने उनके अदब में कोई कसर छोड़ी है? बुग़्ज़े अहमदियत ਦੇ ਵਿੱਚ ये ले। ਤੇ ਇਹ गंद ਵਿੱਚ अब ਵੀ ਮੂੰਹ बताएं। ਮਾਰ ਦੇਗਾ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ। अब बताएं, मैंने इनके मुतालिक अदब को मदूर रखते हुए ये आगे अपना नासिर साहब गल करो। डॉक्टर साहब को भी बात करने दें, काफी देर के आए हैं, उनको भी बात अच्छा जी, मुझे सिर्फ आधा मिनट दे दें। बात यह है दे कि दे, मैं थोड़ा सा दे। इंतहाई अदबकारा कि जरूर। अल्फाज का चुनाव बहुत बेहतरीन रखें। देखें, ये जो है हमारे लिए एक क्या कहेंगे इसको, हमारे लिए तमगा इम्तियाज है कि हम अपनी जुबानों की शाइस्तगी जो है उसके लिए हम मशहूर हैं, और इस अपनी मशहूरी की को जरूर, जामिन बिल्कुल बना के सही। रखें। आपने बात ये है, मेरे मुंह से कोई लफ्ज सुना है आईजी साहब के? नहीं, आईजी साहब के नहीं, मैं जी, बात इसीलिए मैंने कंडेमनेशन दी है कि अल्फाज जरा बेहतरीन रखें। बात ये है अली अहमद साहब, हम यहाँ जो बैठे हैं ना, असल में बात ये है कि यहाँ हमारी जी। जाती हैसियत का मसला नहीं है। हम यहाँ बैठे हैं जी। दिफाई इस्लाम के लिए और सरबुलंदी इस्लाम के लिए, और नबी बिल्कुल पाक दुरुस्त। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरबुलंदी और हिफाजत, उनकी असल तालीमात की हिफाजत के लिए बहुत हमारा सिर्फ मुतालबा ये है कि जितना भी ये मुखालिफ ग्रोह है, ये अपने आप को दीन इस्लाम से मंसूब ना करे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने आप को बिल्कुल जुदा कर ले, और डिस्क्लेमर लगाए कि भाई ना हम ये जो एक्टिविटी कर रहे हैं या जो हमारे ये मामलात हैं, इसका ना दीन इस्लाम से ताल्लुक है, ना हमारा दीन इस्लाम से, ना हमारा नबी पाक से ताल्लुक है। बाकी ये अपनी ब्रॉडों पे जिस किस्म का भी मामला करना चाह रहे हैं, कम से कम अपने आप को दीन इस्लाम और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अलग होके करते रहें। बात सिर्फ और सिर्फ इतनी सी है कि हमारा सिर्फ और सिर्फ मुतालबा इसी किस्म का है कि हम क्योंकि इस्लाम से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमे की खातिर जाने भी दे रहे हैं, और उस कलमे को दुनिया में फैलाने के लिए दिन रात कोशिशें कर रहे हैं, और इस किस्म के ये जो चेले चमाटे 12 इंतहाई तकलीफ से ये मुझे अल्फाज अदा करने पड़े हैं, ये आके हमारी सारी मेहनत पे पानी फेर देते हैं। तो बस ये है कि हम
इन चीज़ों से अपने आप को सिर्फ थोड़ा सा आज़ाद करना चाह रहे हैं कि हमारी मेहनत का हमें सही फल भी मिल पाए। बस ये है थोड़ी सी मामूली गुजारिश। अस्सलामुअलैकुम, आपके 3 मिनट हो गए हैं। अस्सलामुअलैकुम। मेरा वेट मास्टर साहब अपना पॉइंट रखें आप। मेरा वेट भी काफ़ी कर लिया मैंने। वाटर साहब, अच्छा ये जो नासिर साहब कह रहे थे हम सारे इधर लगे हुए हैं इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, वाकई बड़ा सर बुलंद किया है आपने इस्लाम का। वाटर भाई, आप कहते हैं कि यहाँ जो है ना वो नीच किस्म के लोग हैं, यानी मैं तो समझता हूँ कि मोची नाई ट्रक ड्राइवर वगैरह, और ये कहने की वजह ये है कि वो हमारी मुखालफत में काफ़ी आगे आगे हैं। लेकिन अजीब बात ये है कि अब हम भी मुखालफों में इस वक्त भी बैठे हुए हैं। ये ऊपर अफजल बड़ाइस भाई हैं, आसकानी भाई हैं, और उम्मे रुबाब तो काफ़ी बढ़ चढ़ कर जो है वो हमारी मुखालफत में नारे लगाते रहे हैं और गालियाँ निकालते रहे हैं। अली अहमद भाई, थोड़ा सा माइक को म्यूट कीजिए। तो बड़ी जो है वह ना उन्होंने नारे लगाए हैं और हमारी मुखालफत में बड़ा बड़ा कुछ बका है उम्मे रुबाब ने। आज अगर आमन नज़ीर की वजह से, यानी मुसलमानों की वजह से छितरौल हो रही है, तो हम क्यों जो है ना वो इनको हीरो समझना शुरू हो गए हैं, आसकानी भाई और उम्मे रुबाब। ये मेरा तो ख्याल है कि उससे भी नीचे लोग हैं अगर उसी नज़रिए से देखा जाए जिस नज़रिए से आप देखते हैं वाटर भाई। बाकी रह गया कि आमिर नज़ीर के बारे में हर बंदा चूँ 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 कर रहा है, मगर उसकी पाँव जो है ना वो सब पे भारी है। और मैं दावे से कह सकता हूँ, फ़िलहाल तो मेरा यही सब जो अंदाज़ा है कि आमिर नज़ीर को ना तो सरकारी मुसलमान और ना कोई अहमदी ज़ेर कर सकता है, सीधा सीधा। जी, मैं जवाब दूंगा, कोई भी खामोश रहे, सब खामोश रहे, मैं इसको रिस्पॉन्ड करूंगा। माशाल्लाह आपने बड़ी अच्छी बात की है। मैं आपको फ़र्क बताता हूँ टाक मास्टर भाई, आप माशाल्लाह बड़े साहिब इल्म हैं। फ़र्क मैं भी यही सोच रखता था आज से 4-5 दिन पहले, और बिल्कुल हमें असूल सब के लिए एक होना चाहिए। लेकिन फ़र्क पता क्या है, ये लोग बात करने का तरीका आता है, वो सब चीज़ें हैं। तो ऐसी बात नहीं कि उनसे बात नहीं हो सकती, बात हो सकती है, लेकिन मेरे को ये एक है कि अगर होया वा मसला सिर्फ पैदा ना हो, जो तो मैं गड्डी चलो एक ही तो एक्सीडेंट इसलिए होया हम वा किसी एक बंदे के खिलाफ नहीं है। और इन ਉਹਦੇ दोनों ਮੇਰੀ की ਕੂਣੀ ਨੂੰ सफाई ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਕਲਟੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਡੱਬਾ ਕਲਟੀ ਹੋ ਕੇ ਰੇੜਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਦੂਰ ਤੱਕ ਰੇੜ ਕੇ ਫੇਰ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜ ਕੇ ਫੇਰ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ
ਸਹੀ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਬੈਕ ਤੋਂ, ਬਾਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਾਈਡ ਦਾ ਮਿਰਰ ਵੀ ਇੱਕ ਟੁੱਟਾ, बस वो मेरे को एक होया, बाकी उन्होंने मैंने इसी पे बात करी। असल में टॉक मास्टर साहब शायद थोड़ा सा अवे है टिकटॉक की 3-4 दिनों की जो सूरत हाल है, उसमें एक बड़ा अहम नुक्ता है कि जो ये हमारे मशहूर डिबेटर हैं सोशल मीडिया के, सब नाम से वाकिफ नहीं है उनसे। मैंने बात ना कहीं और चली जाएगी, टू दी पॉइंट जो रेज किया ना उसमें। मैं अभी वो अहमियत की बात जो टॉक मास्टर साहब ने बात की है ना कि हम जेर नहीं कर सकते, मैंने भाई थोड़ी सी मुझे कर लेने दे बात, आपकी बात